IHS Pet, industrieshelpinghands.com. So again we are back with a new interview experience of a candidate named Miss Pushpanjali Rajput. She is placed in TCS as Assistant System Engineer. In this video, we are going to discuss her journey from schooling to TCS. Before moving ahead, think about a question. Can an art student get placed in IT sector? Her failure didn't matter because at least she had been true to her impossible dream to the reality. I think that nothing is impossible when you want to fulfill a dream. A lots of people will tell you can't do it, but she did it. So she was BCA pass out in 2019 and MSc pass out in Computer Science 2021. She belongs to a Tier 2 city. She was placed in through off-campus placement drive, even though she gave on-campus interview as well. Her background was arts, and from arts she switched to the IT company because her dream was to be a part of MNCs. So if you are seeking your career in IT sector, don't forget to watch it, and don't forget to like and subscribe our YouTube channel for more such updates. So let's start the session. Okay, so Pushpanjali, introduce yourself. Yes. My name is Pushpanjali. I am from Jalandhar, Punjab. I am post-graduated in recently completed 2021. After completing my graduation, that is in 2019, I got selected for PHP developer position in an IT company. And along with my job, I also continue MSc. Okay, fine. Okay, so Pushpanjali, let's start from your schooling background, okay, because some students are there, they are very confused, so how to choose the field, so from starting from their side, okay. So what was your subject in 11th and 12th? My subjects are math and economics. I'm from arts background. In arts, I select maths and economics. Okay, you are from arts background, and from arts you switched to programming. Okay, that's great. Very great, tricky. Okay, fine. Yeah. So in arts section, 11th, 12th, you had economics in your optional, and maths you had. So no physics, chemistry was there. So maths was also optional. Yeah, math is optional. Math and economics and pole science, but I chose economics and math. Okay, so it was a combination, and rest subject was of arts only. Math, economics, journal, English, Punjabi, painting. Okay, that's it. Okay. So after your schooling, how you decided that you want to go for BCA? Yes, because मैं चाहती थी कि मैं किसी MNC में ज्वाइन करूं. तो पहले तो मुझे था कि जैसे मेरा बैकग्राउंड था मैथ इकोनॉमिक्स का, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मेरी जितनी भी कलीग जो भी लड़कियां थी मेरे साथ, तो वो सबने BSc इकोनॉमिक्स चूज किया क्योंकि वो सेम सब्जेक्ट था, मैथ इकोनॉमिक्स था उसमें भी. तो BCA में मैं सिर्फ अकेली थी. मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था कि मैं प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर फील्ड में मैं जाऊँ. तो मैं अकेली थी जिसने BCA सेलेक्ट किया. मुझे टीचर्स ने भी बोला कि तूने BCA कर लिया, तू इस फील्ड की तो है ही नहीं. तो बट फिर भी इंटरेस्ट की बात होती है, तो फिर मैंने BCA सेलेक्ट किया. ओके, सो BCA में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? मींस प्रोग्रामिंग, बिकॉज जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको प्रोग्रामिंग में आने में थोड़ा इनिशियली कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ लोग कंप्यूटर साइंस इनिशियली क्लास 11 12 में ले लेते हैं, तो आपको BCA में क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया? या BCA में पहले तो हमारे स्कूलिंग में तो सिर्फ कंप्यूटर, सिर्फ जनरल कंप्यूटर था. इतनी प्रोग्रामिंग तक तो पहले तो प्रोग्रामिंग का मुझे मतलब ही नहीं पता ही नहीं था, मतलब नहीं पता था. तो BCA में आने के बाद काफी मेहनत करनी पड़ी. फर्स्ट सेमेस्टर में फेलियर भी हुए, ऐसा नहीं है कि मैं कभी फेल ही नहीं हुई हूँ. फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े फेलियर का भी सामना करना पड़ा. तो बट यही था कि नहीं, मुझे करना है, तो बस. ओके, सो BCA में आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड से वो परसेंटेज और वो कैसे रहे? हाँ, वो इतने अच्छे नहीं थे जितने मेरे पहले, जैसे 80% 70% अबव लाने वाली लड़की BCA में जाके मेरे कहीं 60% भी मुश्किल से बनते थे. तो BCA मैंने सिर्फ 60% से ही क्लियर की है. ओके, फाइन.
सो बीसीए के बाद आपका एग्रीगेट हुआ, उसके बाद 2018 और 19 बीसीए पास आउट, 19। 2019 बीसीए पास आउट। ओके, सो आप लोग के प्रोजेक्ट्स रहते थे? या यस, ओके, प्रोजेक्ट था। मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने एक एनजीओ पे वेबसाइट बनाई थी। कौन सी प्रोजेक्ट से? तो एनजीओ पे थी एक ओके, वेबसाइट। एनजीओ वेबसाइट, ओके। तो वही हमने बनाई थी कॉलेज टाइम। उसमें सिर्फ 3 मंथ्स मिलते हैं, तो जितना हो सका कुछ मॉड्यूल्स टीचर्स ने बहुत हेल्प की, तो वो चलो हो गया। ओके, BCA। सो वो प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? मींस वेबसाइट से रिलेटेड किस टाइप का वर्क था, और आपने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी, उससे रिलेटेड आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो? ब्रीफ, जस्ट हाँ बिकॉज जी। याद तो ज्यादा नहीं होगा, ब्रीफ जस्ट। मैंने वो चूज किया था पीएचपी लैंग्वेज में, पीएचपी एचटीएमएल। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट वगैरह चूज करके एक वेबसाइट बनाई थी। उस पे जस्ट था कि डोनेशन कर सकते थे, किसी ने पुराने क्लोथ्स वगैरह देने हैं तो वो वहां पे आके कर सकता था, रजिस्टर करता था, खुद टीम जाके वहां से वो लेगी। और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे डोनेशंस थे, तो बस डोनेशन पे बनाया हुआ था सारा एनजीओ का। ओके, सो ये डोनेशंस क्या पेमेंट इश्यूज इश्यूज से भी रिलेटेड थे? मींस पेमेंट भी एक्सेप्ट करते थे? हाँ जी, पर वो अभी हमारा जैसे लाइव नहीं था ना, सिर्फ लोकली था सारा काम, तो हमने ओके, ओके, पेमेंट का इतना नहीं था, वो जस्ट दिखाने के लिए था कि पेमेंट भी है, मींस बस फ्रंट पेज में वो रहता था। ओके, सो है। अब या आपके बस एक ही प्रोजेक्ट था कि और कोई ट्रेनिंग्स आपने कोई की थी बीसीए में? बीसीए में नहीं, मैंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तो नहीं की, बट हाँ होता है 3 मंथ्स का, होता है कि आपने 3 मंथ में प्रोजेक्ट बनाना है, तो टीचर हमारे कॉलेज में ही था, उसके एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, तो बस मैंने वही अटेंड करके बनाया था। ओके, और कोई एक्सटर्नल ट्रेनिंग या कुछ नहीं? जैसे आपने पीएचपी पे डायरेक्ट, बिकॉज आपकी बीसीए की नॉलेज या स्कूल नॉलेज और सिलेबस इनफ था कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टली डील कर सकें, या कोई एक्सटर्नल हेल्प आपने ली? नहीं, हाँ जी, एक्सटर्नल हेल्प मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, तो सारा कुछ टीचर से छोटी छोटी चीजें पूछ कर तो वो मैंने किया था। ओके, बहुत मुश्किल आया, फर्स्ट टाइम तो बहुत मुश्किल था। आप फिर बता सकते हैं एमएससी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए? बिकॉज स्टूडेंट्स वो फेस करते हैं, सो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आए, आपने कैसे ओवरकम किया उस प्रॉब्लम्स को? हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम मेन थी प्रोग्रामिंग। मुझे प्रोग्रामिंग इतनी नहीं आती थी, प्रोग्रामिंग सिर्फ जैसे एचटीएमएल का वेब पेज बना लिया नॉर्मल, तो ये सब था। तो पहले तो मैंने W3 स्कूल से बहुत कुछ सीखा है, स्टार्टिंग मैंने वहीं से की है, तो मैंने वहां से काफी सारे मॉड्यूल्स वगैरह पढ़े। पीएचपी के भी मैंने वहीं से पढ़ के बनाया, फिर टीचर्स की बहुत हेल्प ली, उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज समझाई कैसे करना है, और ये कैसे वर्क करता है। आप यहाँ अगर एक फॉर्म बनाया है, वो सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद डाटाबेस में भी सेव करवाना है, मतलब वो सब छोटी छोटी क्वेरीज, सब कुछ मैंने एक W3 स्कूल्स की हेल्प ली और दूसरा टीचर्स की हेल्प। ओके, फाइन। सो पीएचपी में जो आप जो वर्क करते हैं, जैसे एचटीएमएल से रिलेटेड, कई बार फ्रंट एंड बैक एंड, सो प्रोग्राम करते हैं बट वो वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं हो पाता, वैसे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है और कोई इश्यूज आए आपको? हाँ, बहुत इश्यूज आए। पहले तो मुझे लगता था कि हो ही नहीं पाना, एक टाइम पे आके लगता था कि बस रहने दे, तुझसे नहीं होना, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे एरर्स थे, कई एरर्स को सॉल्व करने में तो 2-3 दिन लग जाते थे, और बाद में जाके पता लगता था वो इतनी छोटी सी एरर। तो ऐसे बहुत टाइम भी लगा है, और ओके, काफी कुछ सीखने को मिला है। ओके, फाइन। सो एरर किस टाइप की थी? प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कुछ और था? या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एरर थी सारी। ओके, फाइन। कई बार फुल स्टॉप मिस हो जाता था, तो उसका भी, अच्छा, ओके, सेमीकोलन वगैरह, कोडिंग रिलेटेड मिस्टेक्स। ओके, कोडिंग की रिलेटेड मिस्टेक। ओके, फिर उसके बाद आपने 2018 और 19 पास आउट? 19 ओके, बीसीए 2019। टू और कौन से कॉलेज से आपने बीसीए कंप्लीट किया? HMB कॉलेज, हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर। ओके, दैट वाज अ गर्ल्स कॉलेज। और वहाँ के या टीचर्स ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया कि आप बीसीए कंप्लीट कर लिए, राइट? यस यस। सो जब आप, और आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट कैसे थे बीसीए के लिए? हाँ जी, पहले कैंपस, हाँ जी होता था, पहले तो ये लॉकडाउन नहीं था तो कैंपस प्लेसमेंट होते थे। अब तो चलो, अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो उस टाइम पे बीसीए में भी मैंने दिया था, ऑफ कैंपस में ड्राइव्स होती थी हमारे कॉलेज, तो उस टाइम मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, ओके, तो काफी कौन सारी सी कमियां थी। ओके, कौन सी कंपनी में आपने दिया? नहीं, एक थी कैपजेमिनी थी, और
एक आधी और थी ऐसी कोई एमएनसी ओके, कंपनी थी, कैब 2 जर्मनी। कंपनी का। ओके, सो यस। कैब जर्मनी का आपने रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया था कि इंटरव्यू, और व्हाट वाज द? पहले इंटरव्यू था, उसके बाद उन्होंने आई थिंक एग्जाम लेना था, तो फर्स्ट फेज ही था, मैं फर्स्ट फेज में ही ओके, डिस्क्वालीफाई आई हुई डिडंट थी, सिलेक्ट नो। ओके फाइन। सो उस टाइम आप शायद या प्रिपेयर्ड नहीं थे, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, सो बीसीए के बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या आपके पास ऑफर भी थे, आप ऑफ कैंपस भी जा सकते थे, फिर आपको कैसे लगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके फिर स्विच करना है या ऐसे? या तो बीसीए के बाद ही कॉलेज से ही मुझे पता लगा था, एक जॉब थी लोकल आईटी कंपनी में थी, पीएचपी डेवलपर की पोजीशन थी। तो फिर टीचर ने बताया, भरने को बोला था, तो मैंने उसके लिए उसका इंटरव्यू दिया था। तो मैं सिलेक्ट भी हो गई, उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया था करने को, तो वो मैं हो गई थी सिलेक्ट। बट फिर भी थोड़ा अंदर डर था कि पता नहीं, अब पहले तो स्टडी बेस पे था, अब जॉब उसी फील्ड में जॉब करनी थी, उन्होंने हमें पे करना था, तो हम कुछ तो देंगे ना उनको करके। एग्जैक्टली। तो तब भी मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो फिर भी मेरा वो इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो मैंने कहा कि चलो अब बीसीए तो हो ही गई है, फ्री बैठ कर भी कुछ होना नहीं। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि यार, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं मास्टर्स भी करूँ। तो फिर मैंने उस टाइम एमएससी में भी एडमिशन ले लिया और इधर से जॉब भी करी, तो साथ साथ में चला। और फिर एक टाइम पे आया तो मुझे था कि अब मुझे एमएनसी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो फिर एमएससी के एग्जाम्स भी देती रही, साथ में ये टीसीएस वगैरह का सब देख के उसका भी प्रिपेयर करती रही। ओके, सो आपने जो कंपनी में सेलेक्ट हुए थे, क्या आप उसका बता सकते हैं, कंपनी का नाम या उसका पैकेज? या उसका पैकेज तो 10K पर मंथ था, ओके। ज्यादा नहीं था। ओके, यस। तो या तो क्यूराइट नाम था कंपनी का, तो वहां मेरी सिलेक्शन हुई थी, जलंधर में ही। ओके, सो उसमें जो आपने इंटरव्यू में क्या फेस किया, और क्या कौन सा प्रोग्राम था कि आप सेलेक्ट हुए, आपसे बन गया? वो था कि एक हमें फॉर्म मिला था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसको डाटाबेस के साथ भी कनेक्ट करना था, उसके डिटेल्स सेव करवानी थी डाटाबेस में, फिर उसको डिस्प्ले करवाना था, इतना सा टास्क था। ओके, और वो पीएचपी बेस्ड था, लैंग्वेज पीएचपी ओनली? पीएचपी और एचटीएमएल। ओके, सो ये जो आपका कोडिंग पार्ट है, आई थिंक ये पार्ट टेक्निकल पार्ट में था, और उसमें एचआर राउंड और कोई अदर राउंड्स भी थे? हाँ, एचआर राउंड था, उन्होंने जस्ट मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह पूछी, और कंफर्टेबल हो या नहीं, रेगुलर आना है, ये टाइम्स वगैरह का था, उसमें जस्ट जनरल क्वेश्चंस थे। ओके फाइन। सो ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू, ये लाइफ का आई थिंक सेकंड इंटरव्यू, पहले कैब जर्मनी का था, राइट? या वो नहीं हुआ, फिर उसके ओके, बाद बीसीए। ओके, और ये दोनों ऑन कैंपस थे, कॉलेज की साइड से थे? यस यस। ओके, उसके बाद आपने ऑफ कैंपस नहीं, डायरेक्टली ये ऑफर उसको पॉज करके आप डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन में स्विच किए, राइट? ओके, सो यस। एमएससी की लाइफ के बारे में आप बताइए कि कैसे आपने स्टडीज, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई? आजकल मतलब मेन तो यही है, जैसे मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे कहाँ हुआ कि अब मुझे बस जाना है, टीसीएस में जाना है। वो एक टाइम था, क्योंकि एमएससी जब हमने एडमिशन ली, तो एक तो लॉकडाउन था, और स्टूडेंट सारे नए थे, तो किसी के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं थी। नहीं था, राइट? तो एमएससी में, हाँ, तो सिर्फ सीआर के साथ ही बातचीत होती थी। तो हमारा लास्ट सेमेस्टर का हमारा वो था, प्रैक्टिकल एग्जाम था, वो कॉलेज में हुआ। तो हम सब जब कॉलेज गए, प्रैक्टिकल का एग्जाम था, और हमारी क्लास की एक लड़की थी जो टीसीएस में सिलेक्ट हुई थी, तो सब टीचर्स वगैरह उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे उसको देख के हो रहा था कि यार ये कैसे गई, कैसे इसने सिलेक्ट हुई, इसने, इसको कैसे पता लगा, फॉर्म निकला, हमें तो पता ही नहीं लगा। क्या ओके, मतलब, मींस यही आप तो फर्स्ट स्टूडेंट्स सेम का। में थे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, और वो फाइनल में सिलेक्टेड थी, राइट? नहीं नहीं, हम दोनों सेम क्लास के थे। ओके, एमएससी ओके, में लॉकडाउन लग गया था, तो ओके, किसी ओके। के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं था ना, कोई एक यस, दूसरे के साथ बातचीत नहीं। यस, यस। तो जब कॉलेज गए तब पता लगा कि हमारी क्लास की एक लड़की है जो टीसीएस में सिलेक्ट हुई है। तो उसको देखकर मुझे हो रहा था कि मुझे भी जाना है। और एक तो एग्जाम था, मेरा एग्जाम की तरफ ध्यान कम था, उस लड़की की तरफ ज्यादा था कि मैं उससे पूछूं कि उसने कैसे किया। ओके, तो फिर मैं वैसे उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि कैसे उसको पता लगा कि फॉर्म निकला है, और कैसे उसने प्रिपेयर किया, क्या एग्जाम पैटर्न था। तो ये सब मैंने उससे डिटेल ली। उसके बाद से मैं रेगुलर टीसीएस की वेबसाइट चेक करती थी,
कोई निकला फॉर्म तो मैं भरूँ। तो एक दिन फिर ऐसे ही मैंने देखा उस पे निंजा हायरिंग चल रही थी, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मुझे एग्ज़ाम के लिए मेल आया, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। ओके, सो मीन्स आप एमएससी में भी आपको जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड थे, बीसीए से एमएससी में आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस हुई किया आपने, इश्यूज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड? वहाँ आपके क्या प्रोजेक्ट्स है एमएससी में? या मुझे एमएससी में इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि एक तो मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया था पीएचपी में 2 साल का, ओके, तो मुझे प्रोग्रामिंग भी आ गई थी, तो मुझे प्रोजेक्ट में कोई इतना इश्यू नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बहुत ईज़िली बन गया, तो आपका उसमें कौन सा मुझे कोई प्रोजेक्ट प्रॉब्लम। था एमएससी में? आपका कौन सा प्रोजेक्ट था? एमएससी में मेरा वर्चुअल क्लासरूम का था। ओके, तो जैसे लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ ऑनलाइन था, तो उसके लिए मैंने वर्चुअल क्लासरूम पे बनाया था। टीचर्स उस पे अपने असाइनमेंट डालते थे, वीडियो लेक्चर्स डालते थे, स्टूडेंट उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते थे, डाउनलोड करके स्टोर भी कर सकते थे, ऐसा था। ओके। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के बाद जो आपका ये टीसीएस का था, आपने कौन से ईयर में अप्लाई किया था? हाँ जी, ये मैंने 2021 में ही अप्लाई किया था। ओके, जब मैंने देखा लास्ट सेमेस्टर ही तो था, जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, उस लड़की का देखने के बाद फिर मैं रेगुलर चेक करने लगी, और फिर उस पे देखा मैंने निंजा हायरिंग चल रही थी, तो 2021 में ही, तो उस टाइम मैंने फिल किया था। फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद वो क्लियर हुआ, उसके बाद 3 राउंड का इंटरव्यू था, टेक्निकल राउंड, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड। उसमें मीन्स आप कह सकते हो ये आपको ऑन कैंपस नहीं था, ये ऑफ कैंपस आप अपने साइड से अप्लाई कर रहे थे, कॉलेज ने आपको प्रोवाइड नहीं किया था, राइट? अ, नहीं, कॉलेज की तरफ से नहीं था, ये मुझे खुद ही मैंने देखा था साइट पे, तब मैंने किया था। और जैसे कॉलेज में भी और कोई कंपनीज भी एप्लीकेबल थी वहाँ? या इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारी लड़कियां हैं, इन्फोसिस में भी है, विप्रो में भी है, टीसीएस में भी है। सो आपने एमएससी कौन से कॉलेज से किया? एमएससी भी मैंने एचएमडी कॉलेज से ही की ओके, सेम कॉलेज से, ओके फाइन। है। सो उसके बाद जो टीसीएस का जैसे आपने रिटर्न राउंड दिया, तो रिटर्न राउंड के लिए आपको मीन्स ऑनलाइन था, और आपने जहाँ दिया इंटरव्यू के लिए कैसा था प्रोसेस? आप पूरा रिटर्न में क्या क्या क्वेश्चंस आए वो डिस्क्राइब कर सकते हो? हाँ जी, रिटर्न में था, एक तो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, मैथ्स था, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, और प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चंस थे। ओके, सो आपने प्रिपेयर इसके लिए टीसीएस के लिए कैसे किया? वो सब मैंने यूट्यूब की बहुत हेल्प ली, कि पहले यूट्यूब पे देखा कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, यस, तो उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, या पहले मैंने इंटरव्यू मतलब उस पे देखा, सारा यूट्यूब पे देखा क्या होगा उसका। तो फिर और मैंने लड़की के साथ भी मैं कॉन्टैक्ट में थी, मैं उससे भी पूछा कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो उसने मुझे बताया, तो वो थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयर किया था, बाकी तो खुद ही आपने कोई किया। पर्टिकुलर साइट फॉलो की कि रैंडमली जो टॉपिक्स अ, थे? वो रैंडमली, Okay, टॉपिक्स रैंडमली। और प्रोग्रामिंग के लिए कोई टेक्निकल के लिए कोई वेबसाइट या कोई कोर्स लिया था? नहीं मैम, प्रोग्रामिंग के लिए मुझे क्योंकि मेरा एक तो पीएचपी में था एक्सपीरियंस, और पीएचपी एमएनसी में इतनी चलती नहीं है, तो एमएनसी का कोई मतलब एमएनसी में पीएचपी का कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं पीएचपी में प्रोग्राम कर सकूं। उसमें जावा, पाइथन, नोड जेएस वगैरह था, तो मैंने पाइथन सेलेक्ट करके पाइथन में प्रोग्रामिंग, मैंने पाइथन पहले पढ़ा हुआ था, तो पर उसका इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने के लायक तो मैं थी नहीं, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा ही अटेम्प्ट किया, ज्यादा नहीं। ओके, सो पाइथन का आपने कैसे प्रिपेयर किया था? आपके कोर्स में तो आई थिंक नहीं होगा, एमएससी में कंप्यूटर साइंस में था। नहीं, पाइथन बीसीए में था मेरे, ओके, बीसीए में एक सब्जेक्ट था पाइथन। ओके फाइन। सो उसके बाद फिर आपने प्रोग्रामिंग में थोड़ा वीक था लास्ट लास्ट में, उसके बाद फिर आपके ये स्कोर ज्यादा थे, इसके स्कोर, रिटर्न के स्कोर? रिटर्न के स्कोर्स तो मेंशन नहीं थे, बट सिर्फ उन्होंने कांग्रेचुलेट करके मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ही बताया था, उस पे स्कोर मेंशन नहीं। और आपके कॉलेज से कोई और फ्रेंड्स भी दिए थे ये टेस्ट? 2021 में सिलेक्शन सिर्फ मेरी हुई है कॉलेज से। ओके, ओके, दैट्स कूल, ओके। सो उसके बाद जो आपने ये किया इंटरव्यू में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपके आई थिंक 4 राउंड्स थे। 3 राउंड्स थे। ओके, एंड हाँ जी, 3 राउंड में फर्स्ट राउंड कौन सा था? फर्स्ट राउंड में 2 उसके पार्ट थे, एक तो टीआर राउंड था, एक एचआर एमआर राउंड था। तो टीआर और एचआर राउंड इकट्ठे ही हुआ, टीआर और एमआर राउंड इकट्ठे हुआ, एचआर राउंड फिर मेरा दूसरे दिन हुआ।
ओके। सो टीआर राउंड में और क्या क्या क्वेश्चंस थे, किस टाइप के थे प्रोग्राम, किससे, एक तो आपने बता दिया। हाँ जी, उसमें था टेक्निकल राउंड में उन्होंने हमसे पूछा था, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही ली थी कि हमें कितनी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो मैंने सब कुछ बताया कि मेरी पीएचडी में है, तो मैं पर पाइथन में स्विच करूंगी, मुझे पाइथन की थ्योरेटिकल नॉलेज है, जावा की भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो उन्होंने मुझसे थ्योरेटिकल नॉलेज के ही क्वेश्चंस पूछे थे। टीआर राउंड के बाद सेकेंड राउंड कौन सा था? एमआर राउंड था, एमआर राउंड, मैनेजरियल यस। एमआर राउंड का में किस टाइप के थे क्वेश्चंस और आपने क्या इश्यूज फेस किए? राउंड। उसमें उसमें भी सिर्फ जनरल्स के क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप टीसीएस में क्यों आना चाहते हो, या आपने मतलब सिंपल क्वेश्चंस थे, इतना टफ नहीं था। और कितनी देर अप्रोक्सीमेटली इंटरव्यू चला आपका, टीआर और इंटरव्यू एमआर? मेरा ये आधा घंटा था, आधा घंटा? आधा घंटा था मेरा। ओके, और दोनों कंबाइंड थे एक ही साथ? हाँ जी, ये दोनों कंबाइन थे। ओके फाइन। सो आफ्टर दैट, इसके बाद आपने, इसका रिजल्ट आया उसके बाद एचआर राउंड के लिए उन्होंने कॉल किया, राइट? यस यस। ओके। उसका भी उन्होंने मेल के थ्रू ही, एक्चुअली ये कॉल वगैरह कम होता है, मेल के थ्रू ही हाँ, या सारी इंटरेक्शन ऑफिस होती दे आर इन्फॉर्मिंग यू बिकॉज आपने खुद अपने साइड से इन्फॉर्म किया, अदरवाइज कॉलेज इन्फॉर्म करते हैं, राइट? सो है। यस। ये जो था आपका, जो एचआर राउंड था, उसका क्या एक्सपीरियंस है? एचआर राउंड बेस्ट था, वो बहुत ही छोटा सा, मतलब 3-4 मिनट का राउंड था। तो वो तो उसमें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था, आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हो, या मतलब बहुत ही बेसिक था वो, बहुत इजी राउंड था, क्लियर हुआ वो भी बहुत अच्छा था। ओके फाइन। सो इसमें एचआर राउंड के बाद कितने दिन बाद आपका फिर फाइनल रिजल्ट आया? एचआर राउंड के बाद मुझे 2 हफ्ते बाद, 2 वीक्स अप्रोक्सीमेट। 2 वीक के बाद फिर आपको रिजल्ट आया, और उसको तब तक आपकी आई थिंक एमएससी कंप्लीट नहीं हुई थी ना? एमएससी या उस टाइम नहीं हुई थी। सो आपको वहाँ के एग्जाम्स में फोकस करना पड़ा होगा, राइट? या और कुछ आप इंटर जैसे स्टूडेंट्स हैं कुछ डिफरेंट ब्रांच के, वो स्विच करना चाहते हैं, उनके बहुत लोग हैं जो टीसीएस के लिए वेट कर रहे हैं, सो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यही सजेशन दूंगी कि मतलब अगर टीसीएस में आना चाहते हो, एक तो पहले रेगुलर आप मुझे, जैसे मुझे लिंक्डइन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे इसका इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। तो मैंने सबको यही पहले सजेस्ट किया कि आप ऑफिशियल साइट देखा करो रेगुलरली, उस पे सारी डिटेल्स होती हैं। तो यही उसको चेक करो और प्रिपेयर करो अपने आप को उसको क्लियर करने के लिए। इतना टफ नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से माइंड फ्री होके प्रिपेयर करो और क्लियर करो। और स्टार्टिंग के लिए डब्ल्यू3 स्कूल बेस्ट है, मैंने ज्यादातर तैयारी अपनी वहीं से की कौन सा कोर्स, एक बार फिर आप बताओगे? है। डब्ल्यू3 स्कूल्स वेबसाइट है ना। ओके। ओके फाइन। हाँ। और कोई कोर्स पर्टिकुलरली, या कोई वेबसाइट, या कोई टेस्ट सीरीज? मैम मैंने तो बस यही फॉलो किया, बाकी यूट्यूब पे सर्च करके बस जितना होता था। मीन्स रैंडमली टॉपिक्स पे कंसल्ट? या रैंडमली। और आपको कोई और में इश्यूज नहीं आए, लाइक वर्बल एबिलिटी सेक्शन, कॉन्ट सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, इसके लिए भी आपने रैंडम टॉपिक्स ही लिए थे? यस मैम, रैंडम ही सब चूज किया था। पहले मुझे इंटरव्यू की टेंशन थी, क्योंकि एक होता है ना, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बेटर ना हो तो थोड़ी टेंशन भी होती है, मेरी इतनी बेस्ट नहीं थी। तो ओके। उसके लिए मुझे थोड़ी टेंशन थी कि पता नहीं होगा कि नहीं। पर मैं बाकियों को यही सजेस्ट करूंगी कि ये मैटर नहीं करता, आप सिर्फ कितने कॉन्फिडेंसली अपनी बात रख रहे हो ये मैटर करता है। तो हाँ। यस। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इंटरव्यूज वगैरह देने हैं तो आप कॉन्फिडेंसली दो, बस। एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस मैटर करता है और कुछ। उसके बाद फिर आपने, जब आपके एमएससी के रिजल्ट्स हैं, और क्राइटेरिया क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस टाइम जब आप दिए थे? यस, 60% मिनिमम होने चाहिए थे ग्रेजुएशन में। तो और एक भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, बस। ओके फाइन। तो ये आपका सेशन रहा, और कुछ आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना करना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? यस। यस मैम, मैं बस उनको यही कहना चाहूंगी, जितनी तैयारी हो सके उतना करो। तो
मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रोग्रामिंग के भी, मतलब अगर प्रोग्रामिंग इतनी नहीं आती, वैसे उन्होंने सिखाना है, सारा कुछ वो सिखाते हैं ज्वाइन होने के बाद, तो आप बस अपना थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी उसकी काफी हाई होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसका आंसर कैसे देना आंसर है, के लिए। तो थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है। सो अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होगी टीसीएस में। ये अभी आपका पैकेज क्या है टीसीएस का में? मेरा 3.6 3.6 एंड यू आर वर्किंग एज असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। इंजीनियर। ओके फाइन। उसके बाद आपने ट्रेनिंग में क्या क्या उन्होंने आपको सिखाया? हाँ जी, वो मुझे यूनिक्स यूनिक्स के कोर्सेज हैं, और पाइथन का, उसके बाद HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ये सब सिखाया। एक हमारा PRA भी हो चुका है, वो भी क्लियर हो चुका है। वो होता है ज्वाइनिंग के बाद, उसके बाद ओके आपकी 2 वीक की ट्रेनिंग होती है, फिर आपका एग्जाम होता है। वो एग्जाम के बाद मतलब आपका कंप्लीट हो गया है एक्सपीरियंस वाला, उसके बाद हम आगे प्रोजेक्ट मिलेंगे। ओके। सो अभी आप किस फेस में हो? अभी आपके वो एग्जाम्स हो गए होंगे? या अब मेरा वो PRA हो चुका है, अब मैं सिर्फ रिलीज लेटर का वेट कर रही हूँ, ओके तो उसके बाद हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिलेंगे। ओके। सो अभी आपका जो है वर्चुअल है प्रोसेस की, वो ऑफलाइन अभी स्टार्ट होगा? अभी सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। वर्चुअल है, ओके। और लोकेशन का प्रेफरेंस ऐसा कुछ कि वो आफ्टर दैट, आफ्टर पैंडेमिक अगर वो आपको कॉल करेंगे तो लोकेशन आप डिसाइड किए थे? हाँ जी, लोकेशन जब मैंने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे 3 लोकेशन सेलेक्ट की थी, तो मुझे लखनऊ लोकेशन मिला है। ओके। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको लोकेशन को लेके भी इश्यूज रहते हैं कि हम वो लोकेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई। ओके नहीं, वो 3 ऑप्शंस होते हैं, वो तीनों में से आपको ही, वो तीनों में से ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। ओके फाइन फाइन। Okay, Pushpanjali, so I think it is done from my end. Okay. यस। Okay, thank you so much, Pushpanjali, for your valuable time. थैंक यू सो मच मैम, थैंक Okay, यू। nice to meet to you. All the best for your next phase. थैंक यू मैम, थैंक Thank यू। you.